let me understand from you what do you mean by skeletal system. In this entire chapter, we are going to learn about the different types of bones, muscles, how muscle works. Apart from this, muscle contraction theory, how the muscle contraction takes place in different types of muscles. So specifically, when you talk about the skeletal system is comprised of bones and cartilages, specifically bones, which are made up of calcium and phosphate. Now, so at the time of birth, a human body consists of around talk say around 300 and plus bones, but as soon as they are grown into the adult, the number goes to reduce to the around 206 bones. Adult human body consists of 206 bones. 206 bones. The largest bone of our body is your thigh bone, where the smallest bone of your body is your stapes, which is present in your ear. Present in your ear. Specifically, our skeletal system has been divided in two parts. One is your axial bone, and the second one is your appendicular bone. Axial means the bones which are present in the central axis, and the appendicular which are present in your arms, legs, and the supporting to the girdles. And the supporting girdles are these are the bones. So talk about that one. So these all put together, total number will be a 206. 206. So 80 bones are the axial bones and 126 bones are your appendicular bones. The appendicular bones will be consist of your bones of your both limbs, like hind limbs and forelimbs. Total 120 bones of your limbs and the 6 bones of your girdle. 4 of your pectoral girdle and 2 of your pelvic girdle. So now, so do you have any idea how many bones are present in your upper arm? मतलब अपने हाथ में कितने bones होते हैं? Any idea? कितने बोन आहेत? How many bones are present? Any guess? Total कितने बोन आहेत? From here to the here. Count it. करो count. How many bones are present in your arm? Count करा. 1, 2, असे count करा. किती आहेत बघा? 17. कसं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 उसके बाद और 4, 15, 14, 15, 16 हो गए. 17 कैसे हो गए फिर? कमल, any guess? संचित, any guess? गलत हो तो भी चलेगा. या मैंने absent है नहीं हर्ष. There are 30 bones in your. अभी कहाँ पे? पहला बोन ये फर्स्ट. यहाँ पे प्रेस करो. You can see there is a minute gap in between it. So these are the two bones, radius and ulna. 3 हो गए. हाँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 हो गए. तो यहाँ पे एक नहीं 5 बोने. 1, 2, 3, 4 और ये वाला 5. देयर आर 17 और 5 कितने हो गए? 22. एंड यहाँ पे हमारे रिस्ट में 8 बोन होते हैं. 8 बोन. देयर आर 30 बोन्स इन योर आर्म. 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे. व्हाट अबाउट लेग?
लेग में कितने होंगे? इसमें 60, इसमें 60, इसमें 60, इसमें 60, 60 काउंट कर। अगेन योर each each hind limb consists of 30 bones as well। एक हमारा थाई बोन, फिर हमारे काफ के यहाँ पे 2 बोन्स होते हैं, टिबिया फिबुला। सिमिलरली जैसे हमारे हाथ की उंगलियों में 14 बोन्स होते हैं, सिमिलरली पैर के उंगलियों में भी 14 बोन्स हो गए। कितने हो गए? 17। जैसे यहाँ पे हमारे सपोर्टिंग बोन्स होते हैं, इफ यू टच योर लेग तो यहाँ पे हमारा यू कैन फील, यहाँ पे जो बोन लगते हैं ना ये वाले, दिस ऐसे 5 रहेंगे, उसे कहा जाता है मेटाटार्सस। और जो एडीएन यहाँ पे रहते हैं ना, वहां पे 7, ये तो 29 हो गए सर। 30th बोन कहाँ पे? दिमाग कहाँ पे? कमल दिमाग कहाँ पे? हाँ? तो जो सपाट, सो आपका निकैप घुटने पे जो आपका, इट्स लाइक यू कैन सी दिस एलिवेटेड निकैप इज योर 30th बोन, जिसे पटेला कहा जाता है। हाँ, तो ये हो गए। और अभी ये तो हो गया 120 सर। 126 बोले अपने यहाँ पे हमारे हिप रीजन में, फिर से यहाँ पे टच करते हैं जहाँ पे हम लोग पैंट वेयर करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड में जैसे बोन, एक इस तरफ से इस तरफ से, ये होता है हमारा पेल्विक बोन, से हिप बोन कहा जाता है। इसी हिप बोन के कैविटी में हमारा थाई का बोन फिक्स अप होता है। ये 2 हो गए। 122। अब कॉलर बोन को हाथ लगा रहे हो यहाँ से, इफ यू फील लाइक दिस वन, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये वाले पोर्शन देखोगे तो यहाँ पे आपको लगता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच कम आउट ना, एक बोन, तो 1 2, इसी तरह 1 2 4 हो गए। ये हो गए तुम्हारे 126 कौन से बोन? अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर मतलब अपेंडेजेस के बोन्स, मतलब हाथ और पैर के बोन। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो उसके बाद आते हैं हम लोग सेंट्रल एक्सिस वाले बोन, जिसे हम लोग एक्सियल बोन कहते हैं। तो दीज आर द 80 बोन्स विच आर प्रेजेंट इन योर। तो सबसे पहला आएगा क्रेनियम। क्रेनियम मतलब हमारा पूरा स्कल। स्कल की बात करते हैं तो बेटा उसमें एक चीज याद रखनी, स्कल में आपका सबसे पहला आएगा, दिस इज द वन व्हिच कम मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। कितने? 8 फ्लैट बोन, जो कि हमारे एक दूसरे से बहुत फ्यूज होते हैं। हाँ, इमूवेबल जॉइंट। कभी ऐसा है क्या भाई आज मेरा इस तरफ का बोन थोड़ा हेडेक हो रहा है तो इधर का निकाल के मैं रख देता हूँ या रख देती हूँ। सो दीज आर द फिक्स्ड बोन्स। इनफैक्ट यू मस्ट नोटिस, अगर किसी को ब्रेन में कुछ इंजरी हुआ है, कुछ ब्लीडिंग वगैरह हुआ, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती, तो उस टाइम पे ये पूरा शेल निकालने के लिए तो आपको यहाँ पे जो बोन्स होते हैं वहां पे लिटरली हैमर से, डॉक्टर टेक्निकल तो उसे हैमर से ओपन अप किया जाता है। ओके, तो टॉक अबाउट दिस वन। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देर आर टोटल 8 बोन्स। तो यहाँ पे कैसे याद रखना है? तो यूजुअली आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारे स्कैम चल रहे, स्कैम चल रहे मतलब कोई भी मोबाइल पे ओटीपी आए तो किसी को देना, शेयर नहीं करना। आरबीआई वही कहते हैं ना, सावधान रहे, सतर्क रहे, डोंट शेयर योर मोबाइल एटीपी। कोई भी बैंक आपका एटीपी ओटीपी सॉरी ओटीपी नहीं मांगती। तेरे हिसाब से पनिशमेंट है? हाँ? तो पण तर पहिल्यांदा आला था। हाँ, 7 मिनट लेट आला। थोड़ा दे, पनिशमेंट दे थोड़ी, तुझ्या हिशोबाचा येते आपने। हो चालू आहे। ओके, तो टॉक अबाउट दिस वन। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 8 फ्लैट बोन। तो मोबाइल पे ओटीपी आता है, एटीपी नहीं सॉरी भाई, तो एटीपी आ गया, एटीपी एनर्जी ना सुबह सुबह का, तो जो सब सो ओटीपी आता है जो हमें सेफ रखना है। यहाँ पे सेफ का स्पेलिंग ऐसे एफ ही नहीं, हम लोग एस ई एफ रखेंगे। तो ओ फॉर ऑक्सीपिटल, टी फॉर टेम्पोरल, पी फॉर पैराइटल, एस फॉर स्पिनॉइड, ई फॉर इथमॉइड एंड एफ फॉर फ्रंटल। अभी ये हम लोग लर्न करते हैं। ये सामने वाला जो हमारा फ्रंट वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द वन, इसे कहते हैं फ्रंटल बोन। क्या कहेंगे?
फ्रंटल। अभी उसके बाद आएगा हमारा इथमॉइड। तो हमारा इथमॉइड और ये स्पिनॉइड, ये जो दोनों बोन थे जो हमारे आई सॉकेट बनाते, ये अंदर से और ये अंदर, मतलब आई सॉकेट बनाने के लिए ये दोनों बोन, एक एक बोन रहेगा ऊपर से, ऊपर का कवरिंग, नीचे का कवरिंग, जो हमारा रूपट साइड पर, जो कि हमारा आई सॉकेट बनाते। फिर आता है पैराइटल। अगर आप देखोगे ये वाले एलिवेशन दिखते ना, तो दीज आर दी बोन्स, मतलब ये सिंगल बोन है, यहां से हमारा बोन का लाइनिंग ऐसा हो जाएगा, इट विल बी द वन, वो गजनी देखा ना, ऐसा ऐसा मार्क हो गया इस तरह, यहाँ से अगर ओपन अप होते तो ये दो बोन से, इसे कहते हैं हम लोग पैराइटल बोन। कौन सा? पैराइटल। और इसके नीचे अगर आप प्रेस करके यहाँ पे देखो, यू कैन सी देयर इज अ स्मॉल एलिवेशन जैसा लगता है, यहाँ पे कान के सराउंडिंग में जो बोन है व्हिच इज नोन एज टेम्पोरल बोन। कौन सा? टेम्पोरल। पैराइटल दो, टेम्पोरल दो, फ्रंटल एक और ऑक्सीपिटल एक। ये क्या हो गया भाई? सो ऑक्सीपिटल एक, हाँ, टेम्पोरल दो, पैराइटल दो। अभी ऑक्सीपिटल कहाँ पे? यहाँ पे, जो हमारे बैक साइड पे था, नारा पार्टिकल बोलता है, मारने का छोटा दिमाग होता है। तो ये छोटे दिमाग को, मतलब सेरिबेलम को प्रोटेक्ट करने वाला जो बोन है वो है हमारा ऑक्सीपिटल। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और ये आई सॉकेट के हमारे स्फिनॉइड एंड इथमॉइड। एम आई क्लियर? हाँ, ये सारे के सारे फ्लैट बोन्स है, सारे के सारे फ्लैट है, राउंडेड स्ट्रक्चर नहीं, फ्लैट है। अंदर की तरफ से देखोगे एकदम प्लेन नहीं होगा, ऊपर की तरफ से भले प्लेन है लेकिन अंदर से देयर विल बी एलिवेशन, ऐसा आपका ये रहेगा, रफ पैचेस ऐसा रहेगा। ओके, एनी डाउट इन दिस वन? हम फिर आते हैं हम लोग फेशियल। अभी अब फेशियल की जब भी बात करें, हमारा फेस वाला पोर्शन यहाँ पे अगर देखेंगे तो देयर आर 40 बोन्स। तो हमारे नेजल ब्रिज जो फॉर्म करता है, ये वाला क्या है, अब देखोगे तो ये नेजल ब्रिज जो फॉर्म करा है वो रहेगा हमारा नेजल बोन। क्या रहेगा? नेजल बोन्स। उसके बाद आएगा हमारा ओमर, मतलब कि ये दो नेजल बोन्स को, मतलब दो कंपार्टमेंट में नाक को हमारा डिवाइड करता है ना, वो रहेगा ओमर। मतलब कि इसलिए ऐसा ट्राई बना है और बीच में ये बोन, तो ये वाला एक तरफ वाला राइट वाला नोस्ट्रिल, लेफ्ट वाला नोस्ट्रिल, समझे? इट विल बी लाइक द वन, ऐसा, समझे? ओके। फिर आएगा जाइगोमैटिक चिक बोन। फिर आएगा कौन की, जिसे इंफीरियर टर्मिनल भी कहा जाता है, जो कि हमारे नेजल चेंबर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये नेजल नाक के जो हमारे चेंबर से उसके अंदर साइड में हमारा ये कॉनके रहता है। फिर आएगा लैक्रिमल। अगर आप देखोगे ठीक से स्पेसिफिकली हमारे आंखों के यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम एंड पे देयर इज अ स्मॉल एलिवेशन जैसा दिखता है, विच इज नोन एज लैक्रिमल ग्लैंड, जो कि हमारा लैक्रिमल ग्लैंड है, जो कंटिन्यू, जिसे टीयर ग्लैंड भी कहता है। हमारे आंखें कंटिन्यू रोती रहती है, लाइक टीयर सिक्रेशन होता है उसमें। अगर हमारे आंखों में आपने देखा रहेगा हल्का सा कचरा भी गया तो सिक्रेशन बढ़ जाता है, बिकॉज ये ग्लैंड जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। चाहे तो कोशिश करके देख लो, उंगली डालो ऐसा आंख में, क्या होगा? पानी आना चालू हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ दी, जब कोई इंजरी होता है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे आंखों में आता है, इट विल स्टार्ट टू सीक्रेट मोर अबाउट दी फ्लूइड, और वो फ्लूइड नथिंग बट टीयर होता है। अभी ये जहां पे इस एंड पे जहां पे प्रेजेंट होता है, वहां पे होता है वो जो कैविटी होती है लैक्रिमल कैविटी, मतलब लैक्रिमल ग्लैंड, वो ग्लैंड है, उसको सपोर्ट वाला जो है वो है हमारा लैक्रिमल, बराबर है, जो कि हमारा लैक्रिमल ग्लैंड सपोर्ट करता है। पैलेंटाइन, टंग से ऊपर इसको बकल कैविटी को टच करो ऊपर, तो अब आपको सेंटर में एक लाइन लगता है, तो हमारा दो बोन, एक राइट पैलेटाइन, लेफ्ट पैलेटाइन, जो हमारा माउथ का जो कैविटी है, कैविटी का जो रूफ वाला पार्ट, अपर वाला बॉडी पार्ट, अपर वाला पार्ट है, वो है हमारा पैलेटाइन बोन। एम आई क्लियर? फिर आएगा हमारा मैक्सिला, अपर जॉ। हमारा अपर जॉ दो पार्ट में डिवाइड है, लेकिन लोअर जॉ जो हमारा एक सिंगल है, कंटिन्यू, एक से कंटिन्यू, लोअर वन। अपर दो पार्ट में, राइट वन, लेफ्ट वन, और ये कंटिन्यू है। दिस इज द ओनली वन विच इज योर, जो कि फिक्स नहीं है, मालूम है ना, ये बोन ही हमारे बॉडी का, जो कि लोअर जॉ जो है हमारा मूवेबल है, जहां पे हमारा इससे मसल से कनेक्टेड है। जो मसल, जो खोपड़ी वगैरह जो दिखाते हैं उसमें दिखता है, देखा रहेगा हमारा ये अलग हो जाता है पूरा, लोअर जॉ। ओके, ये डाउट इन दिस वन? हाँ। फिर आता है हमारा हायर्ड बोन। बोलते हैं सर जुबान में तो कोई टंग, मतलब बोन नहीं होता, बट टंग जिस पार्ट को, जिस बोन को अटैच होते हैं ना,
यू शेप बोन है, उसे हम लोग कहते हैं थायराइड बोन। यहाँ पे हमारा थायराइड के बराबर ये यहाँ पे पीछे की तरफ ये बोन प्रेजेंट होता है। लास्ट वाला जैसे मैंने बोला, हमारे ऑडिटरी मतलब हर एक ईयर में 3 बोन प्रेजेंट होते हैं। स्टेपिस, इनकस, मैलियस। स्टेपिस, इनकस, मैलियस मतलब हमारे ईयर में राइट इस तरफ भी 3 बोन, इस तरफ पे 3 बोन, ऐसे टोटल 6 बोन्स प्रेजेंट रहेंगे। राइट में 3, लेफ्ट में 3। इन तीनों बोन्स का काम क्या होता है, जब मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरी जो मैं बोलने की जो साउंड प्रोड्यूस हुई, दिस विल ट्रैवल एंड बम्बार्ड ऑन ईयर ड्रम, कान के पर्दे के ऊपर बम्बार्डिंग करेगी। उसके वजह से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होगी, वो वाइब्रेशंस आगे लेके जाने का काम कौन करता है, ये तीनों बोन्स करते हैं। इसी की वजह से साउंड परसीव होता है आगे। एम आई क्लियर? ये हो गए हमारे एक्सियल बोन्स, कितने, 80। एम आई क्लियर? एनी डाउट? लिख लो। मी काय केलं लेडीज आणि Atrial natriuretic factor, NF. हाँ, कराओ। इस चैप्टर में पूरा तुम्हारा ड्राइंग स्किल देखने को मिलेगा मुझे। थोड़े सुचर इन डिटेल अपन लर्न करो। तो सुचर्स आर दी वन, लाइक अगर हम लोग देखेंगे हमारे नॉर्मली जॉइंट्स में कैसे टेंडॉन्स या कुछ हमारा मसल्स या फिर फॉर दैट मैटर कि वहां पे कैविटी होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे स्कल के जो बोन्स होते हैं दे आर फिक्स्ड लाइक दिस वन, ऐसे जिगजैग टाइप। यहाँ पे एक जिगजैग हुए, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऐसा फिक्स अप होगा, दे विल नॉट बी एबल टू मूव। देखो हाथ ऐसे रहेंगे, इजीली डिटैच हो जाएंगे। दिस इज द, इसलिए इसे इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। बिल्कुल नहीं, तो ऐसा होता तो हमारा ये वाला फ्रंट वाला इधर आ रहा है, फिर हमारा पैरेलल वाला ऐसा घूम रहा है, तो कार्टून में दिखाते हैं ना।
हो गया? ओके, चलो, हो गया?
So the next is your vertebral column. ओके, तो हमारे स्कल में हम लोग ने कितने देखे बोन्स? हाँ, नहीं, स्कल में 8, क्रेनियम में 8, मतलब टोटल बोन कितने? नहीं, टोटल 18 नहीं हुए, कितने हो गए? स्कल में कितना होगा? 8 हो गए। फेशियल के कितने हो गए? 14, कितना हुआ? 22। फिर हमारे ईयर में 6, हाँ 3 डबल ना 6 आएगा ना, तो कितना हुआ? 22 और 6 28, और लास्ट वाला हायर वाला टंग बोन जैसे हम लोग कहते हैं 29 बोन हम लोग ने अभी तक लर्न किया। So now let's learn the 33 different bones which is known as vertebral column. Now इसे हम लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी। जैसे अगर हमारा स्कल की बात करें, हमारा स्कल जो होता है फ्लैट बोन से बना हुआ है। स्कल जो होता है, स्पेसिफिकली अगर मैं ब्रेन की बात करूं, तो ब्रेन हमारा जो होता है तो फिर आएगा हमारा सेरिबेलम, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे पॉन्स वाली मेडुला ऑब्लोंगेटा, जैसे ही मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे स्कल के लोअर, अगर में हम लोग ऐसा पोर्शन देखें लोअर ऐसे, तो ये देयर विल बी एन ओपनिंग, और इस ओपनिंग से हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा बाहर आता है, उसे हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, उसे हम लोग फिर कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड। एंड द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ दैट स्पाइनल कॉर्ड इज योर, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिब्रल कॉलम, उसे कहेंगे वर्टिब्रल कॉलम। अभी ये वर्टिब्रल कॉलम जो होता है हमारा, ये वर्टिब्रल कॉलम में एक्चुअली देखा जाए तो 5 डिफरेंट टाइप्स के वर्टिब्रे पाए जाते हैं। 5 डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रे। सबसे पहला वर्टिब्रा जो हमारे, तो यहाँ पे अराउंड 33 वर्टिब्रेस रहेंगे, पर एक्चुअल पेज देखा जाए तो इट विल बी 23, इट विल बी 23। अभी स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो हमारा जो बॉडी का जो नेक रीजन में जो वर्टिब्रा पाया जाता है उसे कहेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा। क्या कहेंगे? सर्वाइकल। फिर हमारा बैक थोरेसिक रीजन में, फिर मतलब यहाँ से we'll start from here till the यहां तक और रहेंगे हमारे थोरैसिक। कौन सा रहेगा? थोरैसिक। उसके बाद आएगा हमारा ये वाला, ये कौन सा रहेगा? ये हमारा बैक वाला लंबर, हमारे बॉडी के सबसे बड़े वर्टिब्रा। फिर आएगा सैक्रल, और सबसे लास्ट वाला जो रहेगा कॉक्सिजियल या कॉक्सिक, जिसे हम लोग टेल बोन भी कहते हैं, जिसे हम लोग टेल बोन भी कहते हैं। टोटल 33 वर्टिब्रा। ओके, सो स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें, हमारा जो बॉडी का पोस्चर है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, इट्स नॉट द स्ट्रेट वन, एकदम स्ट्रेट नहीं। ऐसा मतलब अगर मैं रूलर लेता हूँ तो रूलर एकदम रूलर से स्ट्रेट नहीं होता, इट देयर बी कर्व, देयर आर कर्व। सो देयर आर 2 कर्वेचर। अगर हम लोग देखेंगे 2, अगर हमारा वर्टिब्रल कॉलम देखें, सो देयर विल बी लाइक 2 फॉरवर्ड 2 बैकवर्ड कर्वेचर होते हैं, इसी की वजह से हमारा बॉडी थोड़ा सा इरेक्ट है। अदरवाइज ये स्ट्रेट होता तो वी वुड हैव बीन बेंडेड लाइक दिस। हमारा जो ओरंगोटन देखा ना, उनका कंपेरेटिवली ओरंगोटन चिंपांजी जैसा बॉडी थोड़ा बेंडेड होता है, तो बिकॉज ऑफ दी उनका पोस्चर कंपेरेटिवली जो वर्टिब्रल कॉलम इट क्वाइट स्ट्रेट वन होता है। नाउ स्पेसिफिकली देखेंगे, सो भले ही हमारे वर्टिब्रा 33 है, बट एक्चुअल पीस वर 26। सो कैसे याद रखेंगे हम लोग? 26। पहला आएगा हमारा, बात करेंगे
ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने जैसे बोला था कि हमारे कितने टोटल वर्टिब्रे हैं 33, 7 12 19, 19 और ये 10 29, 29 और 4 33 वर्टिब्रा। जैसे बोला था नेक रीजन में हमारे जो रहेंगे दैट विल द फर्स्ट, जैसे हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली हमारा, उसके बाद चेस्ट रीजन में जैसे मैंने बोला कौन सा आएगा हमारा थोरैसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल एंड कॉक्सिक। ओके अच्छा आगे 2 मिनट के लिए। हाँ, you will be my specimen today. Okay, now I said कि बाबा यहाँ से हमारा जो स्कल है which has been located, you can see यहाँ से हमारा कर्व होता है, फिर यहाँ पे फिर अंदर जाता है, देन यहाँ पे अगेन पोर्शन विल कम आउट। तो यहाँ पे यू कैन फील, यहाँ से जब यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारा नेक खत्म होके चेस्ट रीजन चालू होता है, यू कैन सी कि बाबा यहाँ पे कुछ तो ऐसा थोड़ा सा उभार जैसा लगता है, एंड दैट इज योर, इसे हमारा यहाँ से हमारा कौन सा चालू हो जाएगा थोरैसिक टिल यहाँ तक। फिर ये हमारा सबसे कमर वाला जो होता है सबसे बड़ी वर्टिब्रा होती है, और इनका जो होता है ये सबसे मैक्सिमम इनके ऊपर लोड होता है। दिस आर दी वन, सबसे बिगर होने का रीजन, दिस आर दी वन व्हिच सपोर्ट प्रोवाइड मैक्सिमम सपोर्ट टू द विसरल पार्ट ऑफ योर बेली रीजन, इसलिए उसका लास्ट वाला जो होता है टेल में, हमारा जो टेल के ऊपर हमारा मतलब एब्डोमेन कैविटी के थोड़ा सा नीचे वाला जो रहेगा इट विल बी अ सैक्रल, और सबसे लास्ट में टेल जो रहेगा। तो ये जो दो कर्व आगे आगे जो सर्वाइकल में कर्व आएगा तो सर्वाइकल कर्व, अगर हमारा लंबर में कर्व आ रहा है तो दैट्स द लंबर कर्व। ओके ओके, नाउ एक्चुअल वर्टिब्रे कितने हैं 33, और वर्टिब्रे के पीस कितने, पीस मतलब कि नंबर्स, मतलब अगर मैं निकालने जाऊं तो एक एक वर्टिब्रा निकालूंगा तो मुझे कितने पीसेस मिलेंगे ऐसे 26 पीसेस। क्यों, ऊपर के 7 अलग अलग रहेंगे, 12 अलग रहेंगे, 5 रहेंगे, लेकिन जो हमारा सैक्रल बोन होता है वो फ्यूज होके एक बनता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे इट विल बी लाइक दिस वन। एक दो तीन चार पांच, और यहाँ पे लास्ट में एक दो तीन, अच्छा ये सैक्रल और नीचे वाला कॉक्सिक, ऐसे हमारे टोटल कितने बोन्स हो गए, ये ऊपर वाले 5 फ्यूज होके एक बना, 4 का फ्यूज होके एक बना। तो टेल पीस इज द वन जैसे कि जो हमारा बताता है कि इट वाज इन एंशिएंट टाइम कि ह्यूमन यूज्ड टू हैव, these are some of the traces that we used to have a tail, so this is the portion where जहाँ पे टेल मसल्स अटैच होते थे, टेल मसल्स अटैच होते। am I clear till now? okay, याद रखने का सिंपल तरीका C7 CH12 L5 S ब्रैकेट में 5 क्यों लिखा, मार्फोलॉजी का, मार्फोलॉजी में याद है ना, हम लोग जब फ्यूज होते तो हम लोग ब्रैकेट में लिखते, फ्री रहते तो ब्रैकेट निकाल लेते, तो यहाँ पे 5 फ्यूज होके एक बने ना, तो ब्रैकेट में 5। तो ये एक्चुअल वर्टिब्रे 33, बट पीसेस कितने रहेंगे 26, नंबर ऑफ वर्टिब्रे 33, एक्चुअल पीसेस 26। एम आई क्लियर? 26 कैसे, हाँ 5 का एक, ये एक, मतलब कितना 7 12 29, 29 और 5 24 25 26, समझे? हो गया, हो गया, लिखिए देखो। एक्सियल बोन्स है, अभी तक मैंने अपेंडिकुलर चालू नहीं किया। बंद करो, अरे मला लवकर आली ना म्हणून थंडी वाजते तिला।
ओके, चलो। सो ये हो गया। सो वर्टिब्रा हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप। एक आएगा आपका टिपिकल वर्टिब्रा और टिपिकल। बिफोर दैट, टिपिकल वर्टिब्रा का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, थोड़ा सा मैं अलग तुम्हारे बुक से तुम्हें इजी करके बता रहा हूँ। Bye.
ओके नाउ लिसन, जब वर्टिब्रा की बात करते हैं, तो टिपिकल वर्टिब्रा की बात करेंगे तो उसमें देयर आर सर्टेन पार्ट्स व्हिच नीड टू अंडरस्टैंड। एक हमारे वर्टिब्रा जो होते हैं ना, इट विल बी द वन जिसका एक पोर्शन जो रहेगा एलिवेटेड रहेगा, इट विल बी अ एलिवेटेड बल्जी पार्ट रहेगा, उसका सेंटर वाला पार्ट जो रहेगा थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू से बना रहेगा, और उस सॉफ्ट टिश्यू को कहते हैं हम लोग सेंट्रम। क्या कहते हैं? सेंट्रम। इन बिटवीन दी सेंट्रम, सेंट्रम के जस्ट बिलो देयर विल बी अ कैविटी जिसके थ्रू हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। जैसे कि हमारे स्कल से मैंने क्या बोला, स्कल के लोअर पोर्शन पे देयर इज अ ओपनिंग नोन एज फोरामेन मैग्नम। क्या कहते हैं उसे? फोरामेन मैग्नम। उससे अबव उसे कहेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा। जैसा ही मेडुला ऑब्लंगेटा फोरामेन मैग्नम से नीचे आया उसे कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहेंगे? स्पाइनल कॉर्ड। और यही जो न्यूरल, ये सेंट्रल वाला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूरल स्पाइन। क्या कहते हैं? न्यूरल स्पाइन, सॉरी इसे कहते हैं सेंट्रल कैनल। इसी के थ्रू हमारा क्या स्पाइनल कॉर्ड विल बी पासेस आउट, स्पाइनल कॉर्ड विल बी पास आउट। और उसी के ऊपर 3 लेयर रहेंगे, पाया मैटर, अरेक्नोइड मैटर, ड्यूरा मैटर, जो यूजुअली मैं तुम्हें पेट पे मार दूंगा ऐसा। तो ऐसा है कि भाई किसी का, हाँ सर मेरा स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज हो गया, आई गॉट पैरालाइज, ऐसा नहीं होता ना। तो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? ये तीनों लेयर्स होते हैं, पाया मैटर, अरेक्नोइड मैटर, ड्यूरा मैटर। जब सबसेक्वेंटली हम लोग लर्न करेंगे कहाँ पे रहेंगे, जब हम लोग नर्वस सिस्टम लर्न करेंगे 12th में, तब बताऊंगा। ओके, तो अगर टिपिकल वर्टिब्रा करेंगे तो वहां पे साइड में 2 आर्म्स रहेंगे, उसे ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। और एक ये रहेगा हमारा जो कि हमारा न्यूरल स्पाइन, जो कि बैक साइड में प्रेजेंट रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, डाउनवर्डली डायरेक्टेड। यू कैन सी लाइक अगर हम लोग यहाँ से हाथ लगेंगे सो वी कैन सी कि हमारा ऐसा पीछे की तरफ ऐसा नीचे से हम लाइन लगती है, इधर मार्जिन विच लुक आउट, ये वही लाइन होता है। ओके, सेकेंडली अगर ये देखेंगे हम लोग, इसमें से अगर कोई भी पार्ट अब्सेंट है तो उस वर्टिब्रा को क्या कहेंगे? या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, इसका कुछ स्ट्रक्चर चेंजेस है, तो उसे कहेंगे अटिपिकल वर्टिब्रा। क्या कहेंगे? अटिपिकल वर्टिब्रा। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर फिक्सअप होता है। ओके, अब एक काम करो, पेन ले लो, पेन हाथ में, 2 पेन, 2 लेना, ये नहीं चाहिए ऐसे, मतलब ऐसे पकड़ो, पकड़ा, हाँ, दोनों के बीच में गैप रखा, ऐसा ऐसा रखा, ये दोनों के बीच में गैप हो गया, बराबर है। अभी एक सिंगल रखो, इसको जोर से प्रेस करो, क्या होगा? पेन होगा ना। सिमिलरली हमारे 2 वर्टिब्रे के बीच में, अभी ये दोनों वर्टिब्रे के बीच में एक दूसरे से कनेक्शन बनाता है। ये कनेक्शन जो बनता है ये, सो दीज आर देयर आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट, जिसे हम लोग कहते हैं फैसेट्स। जो अपर साइड में रहेगा वर्टिब्रल डिस्क के ऊपर, उसे रहेंगे कहेंगे प्री ज़ाइगोपोफाइसिस, और लोअर पोर्शन पे रहेगा वो पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस। प्री ज़ाइगोपोफाइसिस एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस वो क्या करेगा? हमारे दोनों वर्टिब्रे को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, इसलिए इसे कहते हैं आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स। आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स मतलब ऐसे फैसेट्स जो जॉइंट बनाते हैं, जो एक दूसरे के बीच में कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। दूसरी चीज, इसी के थ्रू यहाँ पे एक डिस्क प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं हम लोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या कही रहेगी यहाँ पे? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कभी कभी क्या होता है, या एक्सीडेंट की वजह से ये जो डिस्क इसे डैमेज हो जाती है या डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, तो क्या होगा? 2 वर्टिब्रे के बीच क्या होगा? नहीं, कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ से जो नर्व्स पास हो रही है ना बेटा, तो मैंने क्या बोला, प्रेस कर दिया ना, तो उससे क्या होगा? यू विल फील पेन, जिससे हम लोग स्लिप डिस्क भी कहते हैं। यू मस्ट नोटिस बहुत सारे लोग गले में पट्टा लगाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाले यहाँ से उन्हें ना नमनेस आती है हाथ में कंटिन्यू, ऐसा मतलब कि ऐसा मूंगे जैसा लगता है, उन्हें ऐसा नमनेस आती है, बहुत ऐसा लगता है कि बहुत हेवी लग रहा है, नमनेस आ जाती है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ नर्व पेन, न्यूरोपैथिक पेन। तो उस टाइम पे क्या होता है, इफ वी लिफ्ट अप लाइक दिस वन, 2 इसके बीच में प्रेस हो रहा था ना, तो आप वहां पे बेल्ट लगा तो क्या थे, यू विल बी लिफ्टिंग इट, तो थोड़ा सा वहां पे कंप्रेशन नहीं होगा, एंड द नर्व वोंट बी प्रेस और यू विल फील द रिलैक्स। ये हमारा इन बिटवीन दी 2 vertebrae there is specialized disc like structure present which is known as intervertebral disc. ओके, और यही अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो जिसे हम लोग कहते हैं स्लिप डिस्क। एम आई क्लियर? हाँ, इतना क्लियर है? एनी डाउट टिल नाउ? ओके,
करो फटाफट चलो। नहीं नहीं, चलो एक काम करो, एकदम परफेक्ट आइडियल स्ट्रक्चर नहीं, बट दिस इज द वन, थोड़ा सा तुम लोग को सिंपलीफाई करके बताया, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। हाँ, स्पंज बोन, पोरस बोन असतो स्पंज। Let's आता one by one we'll learn all the vertebrae.
Okay, now listen. The first vertebra, which is known as first type of vertebra we are going to learn here, cervical vertebra. As I earlier said, these are the vertebra which is present in your neck region. They are 7 in number. So as I earlier said, there are two types of vertebra, typical and not typical. Typical is the one जिसमें सारे structures present, neural spine, फिर हमारा transverse procession और everything will be present. Secondly, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उसमें क्या क्या था, हमारा न्यूरल स्पाइन था, ट्रांसवर्स प्रोसेस था, फिर हमारा प्री एंड पोस्ट हाइगोपोफाइसिस थे, सेंट्रम प्रेजेंट था, मतलब सारी चीजें जिसमें आइडियल रहेगी दैट विल बी अ टिपिकल. उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कोई स्ट्रक्चर एब्सेंट रहा तो उसे हम लोग कहेंगे अटिपिकल वर्टिब्रा. सो नाउ जब हम लोग इन 7 वर्टिब्रा की बात करते हैं तो इसमें से फर्स्ट वर्टिब्रा, सेकंड एंड द सेवेंथ वन आर नोन एज अटिपिकल वर्टिब्रा. मतलब इनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ रहता है. जबकि हमारा थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड सिक्स वन इज नोन एज दी, जिसे हम लोग टिपिकल वर्टिब्रा कहते हैं. नाउ स्पेसिफिकली जो फर्स्ट वर्टिब्रा विच इज नोन एज योर एटलस वर्टिब्रा विच इज नोन एज एस बोन, हमारा जो हेड का एस वाला मूवमेंट होता है. अभी ये ऑक्सीपिटल बोन, ये वाला हमारा बोन है ना, ये जो पीछे नीचे की तरफ आता है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे नीचे एक ओपनिंग है जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं. उसके अलावा वहां पे ना दो ऐसे एलिवेशन रहेंगे सो दैट कि यहाँ पे ये वर्टिब्रा इसमें फिक्स अप हो जाए. और जो आपका एस वाला मतलब ऐसा लाइक द वन जिसमें ये एस वाली मूवमेंट आती है, इसलिए इसे एस बोन कहते हैं. इस बोन की वजह से हमारा एस वाला मूवमेंट आता है, इसलिए व्हाट इज सेड टू बी इसे एटलस क्यों कहते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट पीपल सेज लाइक ऐसा कुछ है, बट ऐसा एज पर द ग्रीक माइथोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं कि एटलस इज अ ग्रीक गॉड जिसने अर्थ को ऐसा होल्ड करके रखा है. तो इज द वन जिसने एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखा है. सिमिलरली हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा जो है ये हमारे स्फेरिकल स्कल को होल्ड करके रखते हैं. दैट्स द रीजन इसे एटलस नाम दिया गया. ओके, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग, इसमें अगर हम लोग देखेंगे रिंग लाइक स्ट्रक्चर से, यहाँ पे देखो ट्रांसवर्स प्रोसेस जो कि फाइन थे दैट हैज बीन रिड्यूस, थोड़े से फ्लैट जैसे हो गए. न्यूरल स्पाइन तो है ही नहीं. फिर हमारा सेंट्रल एब्सेंट है, सेंट्रम की जगह पे यहाँ पे एक कैविटी रहती है, इट विल बी अ कैविटी जिसे हम लोग कहते हैं ओडोंटॉइड कैनल. क्या रहते हैं, ओडोंटॉइड कैनल. इट्स लाइक कैविटी, जिस कैविटी में हमारा ओडोंटॉइड प्रोसेस जो होता है कौन से एक्सिस वर्टिब्रा का फिक्स होगा एंड दिस विल गिव्स यू नो वाला मूवमेंट, एस वाला मूवमेंट बिकॉज ऑफ एटलस और नो मूवमेंट बिकॉज ऑफ एक्सिस. इसलिए एटलस को कहा जाता है एस वर्टिब्रा या एस बोन और एक्सिस को कहा जाता है नो बोन. क्लियर बेसिकली. हाँ, तो यहाँ पे हमारा जैसे मैंने बोला कि ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल में जैसे फ्रैक्चर्स रहेंगे उसमें फिक्सअप होने के लिए फैसेट्स रहेंगे सो दैट वो फैसेट वहां पे फिक्स्ड हो जाए और हमारा एस वाला मूवमेंट आ जाए. तो इट विल बी लाइक द वन, ऐसे फैसेट्स रहेंगे वर्टिब्रा में, वो हमारे स्कल यहाँ पे आके फिट होगा और जो हमारा स्कल को स्कल में ये तो स्टेडी रहेंगे, स्कल विल बी लाइक द वन जो हमारा एस वाला मूवमेंट मिलेगा, हो गया ना, हाँ वाला मूवमेंट. क्लियर है, ओके, हो गया ना, समझ लिया नहीं, ना समझ लो. Okay, now look at this one. याच्यामध्ये काय बोन आहे तिथं, इट्स अ स्पॉन्जी बोन विल बी, इन्स्टेड ऑफ स्पॉन्जी बोन देर विल बी अ गॅप, कॅव्हिटी असणार. तर असा बोन आहे स्पॉन्जी, हा बोन नसणार इथं, हा ही कॅव्हिटी आहे आणि या कॅव्हिटीमध्ये हा ऍक्सिस वर्टिब्रा फिट होणार ज्याच्यामुळे ही नो वाली मुवमेंट. ऍटलस वर्टिब्रामध्ये काय आलं, हा ही कॅव्हिटी डेव्हलप झाली, या कॅव्हिटीमुळे ऍक्सिस फिट झाला त्याच्यामुळे ती मुवमेंट. इतना प्री एंड पोस्ट जाइगोफाइसिस है का नहीं, ठीक है, ऊपर कोई वर्टिब्रा नहीं, नीचे वाला है, उसके लिए वहां पे हमारा कैनल है, उस कैनल में ये ओडोंटॉइड प्रोसेस फिक्स अप होगा, इसलिए वहां पे प्री एंड पोस्ट जाइगोफाइसिस नहीं, इसलिए इसे अटिपिकल कहते हैं ना. क्लियर आहे, आता समजलं. ते कॅव्हिटी नेक्स्ट ज्यावेळी ऍक्सेस लर्न करू ना त्यावेळी समजेल. ओके.
जॉइंट फैमिली लगा। हाँ? चलो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हा ये आपण जर का बघितलं स्पेसिफिकली लहान मुलांमध्ये मोर दॅन 310 ऑलमोस्ट 300 पेक्षा जास्त बोन्स असतात। आपल्या बॉडीला असं काय होतं, फॉर एक्झाम्पल आपला हा बोन घ्या, ठीक आहे, ह्युमरस जर बोललो आपण, मला ते स्ट्रक्चर जे आहे ना लाईक पर्टिकुलरली असं क्या होता बाबा कि बाबा इसमें लाइक हमारे बॉडी में जब पैदा हुए तो उस टाइम पे 300 बोन है और ऑल ऑफ सडन बाय द टाइम यू गेट मैच्योर एडल्ट बन जाते तो 206 होता है। तो आइडियली व्हेन वी लुक एट दिस वन, ये दिखने में एक बोन है बट एक्चुअली इट इज मेड ऑफ इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, दीज आर द पोरस स्ट्रक्चर्स, जिसे हम लोग कहते हैं एपिफिजियल प्लेट्स। क्या कहते हैं? एपिफिजियल। जैसे जैसे हमारा एज होता है, यहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं गेट कैल्सिफाइड। गेट कैल्सिफाइड मतलब जो कि पोरस होगा, वीक होगा, इट विल बिकम ऑसिफाइड, एकदम हार्ड बनते जाता है। सो रादर देन ये डिफरेंट 1 2 3 4 5 अलग डिफरेंट टाइप के मतलब बोन्स होने की वजह से उनका फ्यूजन होके एक ही बोन बनता है, उनका फ्यूजन होके एक ही बोन। ओके, छोटे बच्चों में आप देखोगे, यहाँ पे मेरा नहीं है, नहीं तो बोलोगे सर यहाँ पे आपके इधर भी उड़ रहा है सर। आपने देखा यू मस्ट नोटिस, यहाँ पे हाथ लगाते ऐसा लाइक उड़ते रहता है, ऐसा लगता है। तो दिस इज द वे, वहां पे पूरा स्कल अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, बट जैसे जैसे 2-2.5 साल के 1.5-2 साल के हो जाते हैं, इट गेट फुल्ली डेवलप कवर अप हो जाता है। तो दिस थिंग्स हैपेंस, बट जब बाय द टाइम जब आपका 16 to 18 ईयर्स ऑफ एज में आपकी फुल्ली ग्रोथ हो जाती है, बाय द 21-22 ईयर्स तक मैक्सिमम आपकी हाइट बढ़ती है, क्योंकि बोन्स वगैरह पूरा हो जाते हैं। उसके बाद उसका कैल्सिफिकेशन होता है। कैल्सिफिकेशन मतलब दे बिकम वेरी मच स्ट्रांग। मतलब ये जो पोरस कैविटी जो दिख रही थी, यहाँ पे क्या रहेगा, कैल्शियम आके डिपॉजिट होता है। इसका वाइस वर्सा कब होता है? फीमेल्स में जब 45-50 के एज में जब मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, ईस्ट्रोजन की लेवल फॉल हो जाएगी। ईस्ट्रोजन का लेवल फॉल होगा तो क्या होगा, कैल्शियम बॉडी में उतना एब्जॉर्ब नहीं होता, बट बॉडी को तो कैल्शियम चाहिए ना, तो बॉडी को कैल्शियम कहां से लेगा? बोन से लेगा। तो जहां पे हमारा बोन स्ट्रांग हो रहा था अर्ली एज में, इट स्टार्ट टू बिकम पोरस, उसे हम लोग ऑसिफिकेशन कहते हैं। स्ट्रांग होना कैल्सिफिकेशन, पोरस होना ऑसिफिकेशन। इसलिए तुमने देखा रहेगा जो एल्डरली एजेस महिलाएं रहती है या फीमेल्स रहती है, उनमें बोन फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होता ना। क्यों? आप जितने भी कैल्शियम सैंडोज या इसकी जो एड देखते हो, क्या देखते हैं? पोस्ट मेनोपोजल कैल्शियम मीट के लिए यूज कैल्शियम सैंडोज, और ये जिससे आपको कैल्शियम नीड मीट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे कैल्शियम उतना मिलता नहीं, मतलब एब्जॉर्ब होता नहीं। तो दैट इज द रीजन कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकने के बाद थोड़ा कैल्शियम डाइट बढ़ाने के लिए डॉक्टर एडवाइस करता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फीमेल बॉडी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम अलॉन्ग विद द आपका कैल्सिटोनिन के साथ साथ। नहीं, ओवर द पीरियड टाइम क्या होगा, इसका कैपेसिटी कम हो जाएगी।
इसका काम करना बंद हो जाए, मतलब ऑसिफिकेशन हो जाएगा इसी वजह से, समझे। तो ऐसे बहुत से बोन्स होते हैं जो कि इनिशियली बहुत सारे बोन्स का बन के एक बोन होता है, इसलिए 310 कहाँ पे और कहाँ पे 206 डिफरेंट टाइप के। ओके, 15 मिनट है अभी और। जब बात करते हैं हम लोग एक्सिस की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, नो बोन, उसे कहते हैं हम लोग नो बोन। दिस इज द सेकंड वर्टेब्रा, सर्वाइकल वर्टेब्रा। जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि एटलस में क्या था, देयर इज अ ओडोंटॉइड प्रोसेस, उस प्रोसेस सॉरी ओडोंटॉइड कैनल था, उस कैनल में फिट अप होने के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल स्ट्रक्चर, मतलब क्या, हमारे मेन टिपिकल वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अटिपिकल वर्टिब्रा ना। यहाँ पे भी अगेन हमारा न्यूरल स्पाइन है, ट्रांसफर प्रोसेस है, बट दे आर रिड्यूस, उतना पूरा ही नहीं है। फिर प्री एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस प्रेजेंट है। दूसरी चीज यहाँ पे ओडोंटॉइड प्रोसेस है जो फिक्सअप होता है हमारा किसके साथ, एटलस वर्टिब्रा के ओडोंटॉइड कैनल के साथ, और जिसकी वजह से हमारा नॉडिंग वाला नो मूवमेंट आता है। दैट इज द रीजन दिस वर्टिब्रा इज नोन एज नो बोन, इसे हम लोग नो बोन कहते हैं। एम आई क्लियर? इतना ही उसमें याद रखो। ओके, हो गया?